السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم، اور آج ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محترم جناب پرویز خٹک صاحب، اور ہمارے ساتھ آن لائن ہوں گے وزیر اعلیٰ پنجاب محترم جناب شہباز شریف صاحب۔ محترم جنید سلیم صاحب کو آپ نے میرا تعارف دوسرے نمبر پہ کروایا ہے، مگر میں یہاں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میرے صوبے کی جو کارکردگی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک نمبر ہے۔ میاں صاحب آپ کی کارکردگی کی طرف بھی آتے ہیں، لیکن آج آپ دونوں محترم وزراء اعلیٰ کو یہاں پہ دعوت دینے کا مقصد یہ تھا کہ آپ دونوں پچھلے دنوں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ چین کے دورے پہ تشریف لے گئے تھے۔ وہاں پہ آپ دونوں کی بہت قربت رہی، انٹریکشن بھی رہی ہوگی۔ وہاں پہ کیا دیکھا، کیا ہوا، کچھ اس کے بارے میں بتائیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو جو ہم دونوں کی خاص طور پہ انٹریکشن رہی ہے اس میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ خٹک صاحب جتنے ٹی وی پہ نظر آتے ہیں اس سے کہیں زیادہ کمزور ہیں۔ اور یہاں میں سب سے پہلے تو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ محترم وزیر اعظم بھائی جان نے ہم چاروں وزراء اعلیٰ کو ساتھ لے جا کے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ اور وہاں پہ گو کبھی کبھی ہوا تیز ہونے کی وجہ سے یہ خٹک صاحب پیچھے رہ جاتے تھے، مگر ہم نے وہاں لوگوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں جنید بھائی، ادھر سے جب ہم جہاز میں بیٹھے تو یہ سب لوگوں نے اپنا اپنا سامان اوپر رکھ لیا اور ہمارا سامان رکھنے کا جگہ ہی نہیں تھی۔ دیکھیں خدا کے لیے الزام تراشی سے اجتناب برتے ہیں خٹک صاحب۔ ہم نے جنید صاحب ہم نے جگہ رکھی ہے ان کے لیے، مگر بخدا ہمارے ذہن میں تو یہ تھا کہ ان کی کپڑوں والی چھوٹی گتھلی ہوگی، اس کے لیے کافی جگہ تھی، چونکہ ہمارے ذہن میں یہی تھا کہ ان کے ایک سوٹ کو اتنا ہی کپڑا لگتا ہے جتنا بڑی انگلی پر پٹی کریں تو لگتا ہے۔ او میاں صاحب، ہمارا تو نارمل بیگ تھا، آپ اتنا بڑا اٹیچی لے کے آئے کہ اس میں 3 گھروں کے کپڑے آ جاتے۔ یہ تو بعد میں پتا چلا ادھر سے خالی لے کے گیا، ادھر سے بھر کے لائے گا۔ دیکھیں، میں آپ کو زیادہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، آپ کے ساتھ کوئی میری دشمنی نہیں ہے، آپ میرے بھائی ہیں۔ آپ یہ بھی تو بتائیں خٹک صاحب کہ جب چین ایئرپورٹ سے باہر نکلے ہیں تو میں نے وہاں سے ایک نہیں، جنید صاحب باخدا ایک نہیں، میں نے 4 چھلیاں خریدی ہیں۔ چھلی والا نظر آیا تو 4 چھلیاں خریدی ہیں۔ ایک چھلی میں نے مراد علی شاہ صاحب کو دی ہے، اور ایک چھلی ثناء اللہ زہری صاحب کو دی ہے، اور ایک چھلی یہ میرے بھائی خٹک صاحب کے میں نے پیش کی ہے، اور ایک خود رکھی ہے۔ ہم تینوں تو چھلیاں کھا چکے، مگر خٹک صاحب وہاں پہ مستری ڈھونڈتے رہے چھلی پر سے دانے اتروانے کے لیے۔ یہ کیا بات؟ نہیں ٹھہرے، جب ان کو مستری نہیں ملا تو انہوں نے پروٹوکول آفیسر کو کہا ہے کہ خدا کے لیے مجھے کوئی پلاس ہی دے دے، میں چھلی پر سے دانے اتار لوں۔ پھر آپ کا یہ خادم آگے ہوا ہے اور میں نے ان کی چھلی کو دونوں طرف سے مضبوطی سے پکڑا ہے۔ میں نے کہا خٹک صاحب آپ بلا جھجک بے ڈر ہو کے اب اتارے دانے اس کے۔ انہوں نے دانے اتارنے کی بجائے چھلی کے ساتھ لٹک کے جھولے لینے شروع کر دی۔ ایک دم 2-3 دانے ٹوٹے ہیں تو یہ نیچے گرے۔ جنید صاحب، قومی یکجہتی کا مسئلہ ہے، میں زیادہ کل کے بات نہیں کر سکتا۔ اگر بھائی نے بات چھیڑی دی ہے تو پھر سنو۔ جب ہم چین کے ہوٹل میں گھسنے لگے ہیں
वो जिस लड़के ने दरवाजा खोला है, मियां साहब ने बातें करते करते उसकी आंख में उंगली मार दिया। वो तो बाद में पता चला कि वो जैकी चैन का फर्स्ट कजन है, उसने हूं हा हे किया। तो इन्होंने जेब से कार्ड निकाल के दिखाया, मेरा भाई मैं पंजाब का वजीर आला हूं। उसकी आंख से पानी निकल रहा था, कार्ड तो वो पढ़ नहीं सका। उसने दोबारा किया हे हे हे, तो मियां साहब डर के पीछे होके बोलता है, पाक चीन दोस्ती हिमालय से ज्यादा ऊंची और शहद से ज्यादा मीठी है। तो वो कहता, अरे तुम तो अपना शबाज शरीफ है, क्योंकि यही डायलॉग एक दिन में 6 दफा सिर्फ वो ही बोलता है। मैंने जुनैद साहब, मैंने उसको वाजे किया, मैंने कहा देखो ये डायलॉग मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ कि मुझे मालूम है कि मेरे को किसी चाइनीज दी अक्स चुंगल वज जानी। देखिए खटक साहब, आपको तो सिर्फ होटल के गेट तक का सफर याद है। मैं आपका खादम ये बताना चाह रहा था कि जब होटल का मेरा प्रॉन्स और लॉबस्टर लेके आया है, यानी झींगे और केकड़े लेके आया है, तो पहले तो मैंने एकदम प्लेट छुपा ली। मैंने कहा कहीं खटक साहब को देख के सारे केकड़े दोबारा ना उठ खड़े हो कि हमारे भाई साहब कहाँ आए हैं। मगर फिर मैंने सोचा कि नहीं, केकड़े खाने चाहिए खटक साहब को भी। तो मैंने खटक साहब को खुद एक केकड़ा उठा के इनकी प्लेट में डाला है। तो आप यकीन मानेंगे कि इन्होंने खाने की बजाय केकड़े के साथ सलाम दुआ लेनी शुरू कर दी। तो मैंने इनको इशारा किया है कि क्या कर रहे हैं, बल्कि लोग भी देख रहे हैं और दूसरे केकड़े भी देख रहे हैं। तो जुनैद साहब, मैंने हत्तुल इम्कान ये कोशिश की है कि जो भी खाने की चीज है वो पहले खटक साहब को पेश की जाए। ओ मियां साहब, ये भी तो बताओ, सुबह नाश्ते में उबला हुआ अंडा हमने अपने हाथों से छील के आधा खुद खाया और आधा इनको खिलाया। देखिए यहाँ पे 2 वजाहतें बड़ी जरूरी है जुनैद साहब। पहली वजाहत ये कि इन्होंने अपने हाथों से उबला हुआ अंडा छीलने की कोशिश जरूर की है, मैं मानता हूँ, मगर इनसे छीला नहीं गया। इन्होंने फिर बैरे को आवाज दी है और उससे हथौड़ी और छेनी मंगवाई है और उससे इन्होंने उबला हुआ अंडा छीला है। उसके बाद इन्होंने आधा अंडा खाया है और आधा इनसे खाया नहीं गया, और वो बाकी आधा ये पहले तो फेंकने लगे हैं, फिर इनको मेरी प्लेट नजर आई है तो इन्होंने वो आधा मेरी प्लेट में रख दिया है। मैं मानता हूँ मैंने वो आधा खाया है। चलो खाना पीना छोड़ो मियां साहब। जुनेद भाई, आपको एक मजे का बात बताऊं, जब हम दीवारें चीन के ऊपर घूम रहा था तो मियां साहब कहते कि मैं इसके ऊपर मेट्रो चलाएगा। ये बात सुनते ही चाइना के सदर को एकदम गुस्सा चढ़ गया। उसने बोला दीवार हमारा और मेट्रो ये चलाएगा, ए मुंडा कौन है? वो तो अल्लाह का शुक्र है साथ बड़े मियां साहब थे, उन्होंने बोला कि ये मेरा छोटा पिरा है। ये बात सुन के चाइना के सदर का गुस्सा ठंडा हुआ, वरना शक्ल उसका भी जैकी चैन से मिलता था। मेट्रो चलाने का इन्ना शौक है शिवाजी साहब नूं, इन्ना छोटी जी मेट्रो अपनी जेब च रखी। दफ्तर भी बैठे हो ना ते टेबल ते मेट्रो चलाते रहते हैं, ਜਦੋਂ तक पेट्रोल ना मुक जाए चलाते रहते हैं। और तो अनाउंसमेंट भी कर देने, अगला स्टॉप चुबुर्जी चौक। मेरा ख्याल है चुबुर्जी चौक ने खुद भी गवाही देती है। देखिए ये जो मेट्रो का मजाक उड़ाते हैं, इन्होंने हमारी नकल में ही अपने सूबे में मेट्रो शुरू की है और चाइना भी हम ही इनको लेके गए हैं। मियां साहब, आपके साथ जाने से पहले मैं खुद भी होके आया हूँ। एक मिनट, आप कब गए हैं खटक साहब और कैसे गए हैं? बताएं मुझे, आप कौन से वो उस तार वाले जहाज में बैठ के गए, कैसे गए हैं आप? असली जहाज पे गया था, पुल सीट लिया था, ये इधर बेल्ट लगा था, कोई धागा नहीं बांधा था।
और अल्लाह के फजल से चाइना की हुकूमत के साथ 2.5 करोड़ रुपए के 82 MOU दस्तखत करके आया हूं। देखिए मैं आपको इस बात की दाद देता हूं। अगर आपने 82 MOU साइन किए हैं तो ये आपकी हिम्मत है, जबकि मैं समझता हूं, बल्कि दिखता यूं है कि एक साइन करने से भी आपके डौले पे खलियां पड़ जानी चाहिए। बल्कि मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप हाथ से इतने साइन ना किया करें, बल्कि जूता उतार के स्याही वाली दवात में पांव गीले करके तो जहां पे दस्तखत करने हो वहां पे कंटेनर वाला डांस कर दिया करें। हाँ, जूते से याद आया, शहबाज साहब तो बीजिंग का लंडा भी घूमते रहे हैं कि वहां से लॉन्ग शूज मिलेगा, वो मैं लेके पाकिस्तान आऊंगा, फिर लॉन्ग शूज पहन के सावन बादों में खड़ा होकर तस्वीरें खिंचाऊंगा। क्लिक क्लिक क्लिक। अल्लाह के बंदे, कौम का खिदमत करो, तुमको पोटू का पड़ा है। क्लिक क्लिक। मैं यहाँ आपको खटक साहब मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने 4-5 मरतबा क्लिक किया है और आपको कोई बल नहीं पड़ा। बहुत मुबारक। अच्छा शहबाज साहब जरा मेरी तरफ भी आए ना प्लीज। अच्छा जी, गौरी जरा मेरी लत फड़ी यार। मियां साहब कितने भी आंडे किधरों आने जी? मेरा मतलब है मेरे सवाल का जवाब दे हुजूर। अच्छा, मैं समझा था कि आप जो कह रहे हैं कि मियां साहब जरा मेरी तरफ भी आए, मुझे फिजिकली आपकी तरफ आना पड़ेगा। ये तो हर सरकारी अफसर कहता है कि मियां साहब किसी वेले भी किसी पासों भी आ सकते हैं। नहीं, मुझे आपसे पूछना ये था, वो क्या बना वो जो आपने इमरान खान के खिलाफ 10 अरब रुपए वाली बात पे आपने कोई दावा शावा करना था, कहाँ गया वो आपका केस दावा? देखिए मैं जुनैद साहब ये यहाँ बड़े अफसोस से मैं ये जिक्र करना चाहूंगा, मैंने इमरान खान साहब को नोटिस भेजा है और उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी इख्तियार की है, जिसका मुझे बहुत अफसोस है। लेकिन शहबाज साहब, अगर उन्होंने जवाब नहीं दिया तो इसका मतलब ये है कि वो ये कह रहे हैं कि आप अदालत का दरवाजा खटखटाएं, उनके खिलाफ केस करें, तो क्यों नहीं कर रहे? टीवी बंद करो यार, ये मैनू वकील दी फीस बुआन लगा जी। और जुनैद साहब खुदा के लिए ये तो आप खान साहब को समझाएं, आप मुझे ये क्यों कह रहे हैं? उनको समझाएं कि मैंने गेंद उनके कोर्ट में फेंक दिया है। अच्छा मियां साहब, ये अक्सर बात होती है, मवाजना किया जाता है केपी में और पंजाब में करप्शन इंडेक्स और करप्शन के मवाजने के हवाले से। ये फरमाइए, पिछले दिनों फाफन ने एक सर्वे किया है जिसमें पंजाब के 68% लोगों ने कहा है कि मुख्तलिफ महकमों में करप्शन मौजूद है, जबकि केपी में ये तादाद सिर्फ 52% है। 52% भी बहुत ज्यादा है, लेकिन पंजाब की निस्बत बहुत कम है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखें ये जो सर्वे है, ये तो अल्लाह के फजल से बेशुमार ऐसे सर्वे भी हैं जिसमें ये बताया गया है, ये सामने आया है कि मेरी हुकूमत में करप्शन का खात्मा हुआ है और इसका ग्राफ करप्शन का नीचे गया है। ये एक सर्वे, मुझे नहीं मालूम कि ये कोई क्या सर्वे है, मैं इसको मैं नहीं मानता। इसका मतलब है जो सर्वे आपके हक में हो आप सिर्फ उसी को मानते हैं, जो खिलाफ हो मैं नहीं मानता। देखे मैं सच्ची बात करता हूँ। मैं हरगिज ऐसे जो फजूल किस्म के ये जो सर्वे हैं, मैं जुनैद साहब मैं बिल्कुल उसको नहीं मानता। आपने अगर मान लिया मेरी बात तो ठीक है, वरना ओके, खुदा हाफिज। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जुनैद जी, हम अक्सर देखते हैं इश्तिहारात भी और ये टीवी के ऊपर टॉक्स भी देखते हैं, टॉक शो में
सिगरेट नोशी के खिलाफ, सिगरेट नोशी के नुकसानात भी बताए जाते हैं और इससे बचने के लिए तदाबीर भी बताई जाती हैं और बताया जाता है कि ये अच्छी चीज नहीं। मगर मुझे एक दोस्त कह रहा था कि यार ये जो हुक्का नोशी है इसके ऊपर आप लोगों ने कभी बात नहीं की, जबकि हमारी ज्यादा आबादी गांव में रहती है और गांव में तो ज्यादातर हुक्का ही पिया जाता है। शहरों में भी हमारे बुजुर्ग ज्यादा हुक्का पीते हैं। हाँ, शहरों तक भी आ गया हुआ है। इस पे लोग गौर नहीं करते कि हुक्का भी उतना ही ज्यादा खतरनाक है, बल्कि अगर डॉक्टर से बात करो वो कहते हैं कि हुक्का ज्यादा खतरनाक है। और ये जो एक अजीब एक मिसकंसेप्शन है, बिल्कुल हमारी गलतफहमी है कि गुड़ पानी या इस तरह की कुछ चीजें मुझे इस्तेमाल वाकई यही करने मैं से कहने लगा था कि मुझे वो जिस दोस्त ने कहा, साथ एक जो दूसरा बैठा हुआ था अनवर, वो कहने लगा कि यार हुक्के के नुकसानात इतने नहीं है, उसका जो धुआं होता है वो पानी में तोल के आता है और नीचे पानी होता है और ऊपर गुड़ होता है। कुछ भी नहीं होता। अच्छा, कुछ भी नहीं होता। सिर्फ एक मामूली सा फर्क ये पड़ता है कि जब आप सिगरेट पीते हो तो उसका जो कागज होता है वो भी साथ जलता है, वो आप इनहेल कर लेते हो, उससे बहुत मामूली फर्क पड़ता है। लेकिन जो असल में फर्क है वो ये है कि एक सिगरेट में आप 20 कश लगाते हो, एक हुक्का जब आप ताजा करते हो तो आप 200 कश लगाते हैं। अब देख लो कि कितना जहर आप अपने अंदर लेके जा रहे हो। और एक बार आप 10 सिगरेट पीते 10 सिगरेट पीते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, फिर शायद ये होता है कि ये जो हुक्का है ना अक्सर ये बुजुर्ग पीते हैं, बुढ़े बाबे पीते हैं, जवान बंदों को बहुत कट पीते हुए देखा, और बाबा चूंकि पहले ही फौत होने वाला हुआ होता है। तो अल्लाह सबको जिंदगी से तंदुरुस्ती दे। अगर हुक्के के साथ को फौत होता भी है तो लोगों का ध्यान नहीं जाता कि हुक्का वजह बड़ा है। हाँ, सही तो वैसे ही कहते हैं कि नहीं बुजुर्गों दी आई सी हुण माशाल्लाह उम्र भी तो बड़ी सी। अब बात को सीरियस रहने दो, बहुत सीरियस और संगीन। मैं सीरियस कह रहा हूँ। अब बुजुर्गों को बंदा मुंह पे तो मना नहीं ना कर सकता, तो मैं लाड से मना करना चाह रहा हूँ, अलर्ट करना चाह रहा हूँ कि ये है खतरनाक चीज। जैसे अब तुम खुद कह रहे हो कि एक हुक्का जो है वो 10 सिगरेटों जितना नुकसान देता है, तो फिर बाई ना करें उनको। हमारे ज़हन में बहरहाल हर एक के ज़हन में ये है कि हुक्का पीने से कुछ नहीं होता, सिगरेट जो है वो सिर्फ सेहत का दुश्मन है, और ये पूरी दुनिया में मिसकंसेप्शन मौजूद है। अच्छा जी, इतना खतरनाक है तो बैठ के तो इस तरह वो पी रहे होते हैं जैसे कोई बैनुल अक़वामी अमूर पे गुफ्तगू हो रही है। अक्सर आप गांव में देखते हैं 10-10, 12-12 बुजुर्ग बैठ जाते हैं, विचकार हुक्का रख लेते हैं, और अब तो चूंकि वो पंचायतों में ज्यादा रखा जाता है हुक्का, घूमने वाला हुक्का भी मिल जाता है। तो मैं एक अजीब बात बताऊं, इस वक्त पाकिस्तान के देहातों में 21% खवातीन हुक्के की आदी हो चुकी हैं। 21% खवातीन। आमतौर पे इसको कोई बुरी बात नहीं समझा जाता। सबसे बड़ा जो लम्हा फिक्री है वो यही है कि सिगरेट को तो नुकसानदेह समझा जाता है, हुक्के को बिल्कुल नहीं, और ना बुरा मायूब समझा जाता है। सिगरेट को मायूब भी समझा जाता है, नुकसानदेह भी समझा जाता है। हुक्के के साथ दोनों चीजें नहीं है। ये बड़ी अजीब बात है। वैसे हुक्का पीने वाली औरतों का लिपस्टिक का खर्चा बच जाता है। बहुत अच्छे, क्या बचत निकाली है। अच्छा, एक तो मैं एक और बात बताऊं, हमारे यहाँ ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि हुक्का पाकिस्तान बल्कि खास तौर पे पंजाब में ज्यादा पिया जाता है। हुक्का पहली बात तो ये कि सिर्फ पंजाब के कल्चर का खासा नहीं है, पाकिस्तान के चारों सूबों में कमोबेश यकसा हुक्का पिया जाता है, बल्कि केपी के बाज देहातों में तो भंग डाल के भी हुक्का पिया जाता है, उसको भंगी हुक्का कहते हैं। अच्छा, फिर ये कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया एक, अब बल्कि मैं तुम्हें एक बड़ी हैरत अंगेज बात बताऊं कि अमेरिका का जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 वर्षों के दौरान अमेरिका, ये जरा जहन में रखो कि मैं अफ्रीका एशिया की बात नहीं, अमेरिका की बात कर रहा हूं, कि वहां पे पिछले 3 सालों के दौरान सिगरेट पीने वालों की तादाद में 9.2% कमी और हुक्का पीने वालों की तादाद में 9.4% इजाफा हुआ है। लो जी, अंग्रेज हुक्का पीता हुआ कितना अजीब लगता होगा। होय अल्लाह दी ते आ काम आना है। Where are you come from? When I will beat on your legs, Danga, then you will crying. Go to Chappad and bring buffaloes. Why are you bowling galat अंग्रेजी? And why you discuss buffaloes? You are also first cousin of buffalo. Who will fresh up my हुक्का? मेरा हुक्का कौन ताजा करेगा? चलिए, अंग्रेज भी हुक्का पी रहे हैं। हाय हाय। अब तुम्हें बड़ी दिलचस्प बात बताऊं,
हुक्के के बारे में, उसकी ओरिजिन के बारे में कई दास्तानें मशहूर हैं। एक तो ये कि जो शहनशाह अकबर था उसका तबीब था इरफान शेख, वो हुक्के का मौजद था। इरफान शेख और था तबीब। शाबाश, इरफान शेख का हुक्का तो फिर कौड़ा ही होता होगा, चूंकि शेख साहब गुड़ थोड़ा ही पाते। डालते भी नहीं थे, सिर्फ 7 चक्कर दिलाते। अच्छा जी, इसका मतलब है अंग्रेज के पास जो हुक्का पहुंचा है वो इधर इंडिया से ही गया हो। एग्जैक्टली जब ये ब्रिटिश रूल था यहाँ पे, तो एक बायोग्राफर था विलियम हिक्की। अच्छा। वो अपनी सवाने उम्र में लिखता है कि जब मैं कलकत्ता पहुंचा तो वहां पे हर खाने के बाद मुझे हुक्का पेश किया जाता था। मैं 1-2 कश लगा के छोड़ देता था, लेकिन देखते ही देखते मुझे इस हुक्के की ऐसी लत लगी कि मैं अपने साथ फिर ये हुक्का बरतानिया लेके गया और वहां पर दोस्तों को पिलाया, तो वहां पर भी शुरू। अच्छा सर जी, वो अंग्रेज का क्या नाम बताया? विलियम हिक्की। हाँ, ये सरफराज फिक्की का बड़ा भाई है। यार मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये अंग्रेज जिन्ना को खराब है ऐसा ही कीता है। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान PIA के पायलट्स के कारनामे पे दर पे सामने आ रहे हैं, जिससे एक तरफ तो वतन अजीज की जगहसाई हो रही है और दूसरी तरफ हजारों मुसाफिरों की जिंदगियों को खतरे में डाला जा रहा है। इसी नौइयत के मुख्तलिफ इल्जामात का दिफा करने के लिए आज हस्बे हाल के इस कटहरे में खड़े हैं PIA के एक इंतहाई सीनियर पायलट। जुनैद साहब, जरा ये भी वजाहत कर दीजिए कि मैं अपनी मर्जी से यहाँ कटहरे में खड़ा हुआ। तो ये आपको गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए खड़े हैं? ये आपको लेके आए हैं? नहीं, मैं तो इनको जानता भी नहीं। मेरा ख्याल है ये वैसे ही यहाँ बेचारे फिर रहे होंगे। इन्होंने तो कभी जहाज, मेरा ख्याल है दूर से भी नहीं देखा होगा। देखा या नहीं देखा, वो कानून के रखवाले हैं। जुनैद साहब, इन्हें कानून दी की रखवाली करनी है? हाँ, इन्हों ये कोई कह सकता है कि भाई जी जरा बकरे दी रखवाली करना, इधी रस्सी कच्ची है। रस्सी कच्ची है या लस्सी कच्ची है? उधर जवाब दे। हाँ बेटा, 1 मिनट जरा बात करने दो। जुनैद साहब, मैं यहाँ सिर्फ इस वजाहत के लिए आया हूँ कि हकीकत कुछ और होती है, आप लोग मीडिया पर कुछ और अफसाना बना के सुना देते हैं। ये ऐसी बात नहीं होती जैसी आप लोगों को अपने टीवी पे दिखा रहे होते हैं। अच्छा, ये भी अफसाना था जो पिछले दिनों आप कॉकपिट छोड़ के बिजनेस क्लास में लंबी तान के सो रहे थे। हाँ। 1 मिनट, जहाज उड़ रहा था। हाँ जी। हाँ जी, तो जहाज ने तो उड़ना ही होता है। जहाज उड़ता है अगर, तो उसे कोई उड़ा रहा होता है। पायलट उसे उड़ा रहा था, मैं अगर सोया हुआ था तो इसमें क्या मजा है जी? मुझे बताइए। मेरा ख्याल है आप लोगों के जहन में ये है कि एक बंदा जब उड़ाता है तो दूसरा पिन्ना पकड़ के खड़ा होता है या उसने चरखी पकड़ी होती है। ये कोई डोर से नहीं उड़ता जहाज, ये स्टीयरिंग से ही, बटनों से ही उड़ता है। और वहां पे बंदा बैठा हुआ था, इसलिए वो उड़ रहा था। वो आपका असिस्टेंट था और आप सो रहे थे। जुनैद साहब, मेरी बात सुने, पहले ही यहाँ पायलटों की कमी है। ये जो नए लड़के हैं जो हमारे आज असिस्टेंट हैं, इनको भी तो पायलट बनाना है, फुल पायलट बनाना है इन्हें। इनको भी तो काम सिखाना है। वो अगर साथ बैठ के सिखाएं उनको। यार साथ किस लिए बिठाएं? क्या वो कल्ला डर जाता है? जहाज उड़ाना है उसने या मैंने उसे स्कूल छोड़ने आना है? अच्छा, तुसी कड़े वाल कटने होते? हाँ नहीं, वैसे भी आप वैसे बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अच्छा, मजा क्या है कि मैं उठ के कॉकपिट से पीछे आया हूँ। बिजनेस क्लास में बैठा हुआ एक मुसाफिर मुझे कहता है कि भाई साहब, ये सीट बेड कैसे बन जाएगी? मैंने उसको कहा कि उठे भाई। मैंने उसको सीट बेड बना के दिखाया कि इस तरह सोते हैं। मैं उसे बता रहा हूँ, किसी मनचले ने तस्वीर बना के मीडिया पे छोड़ दी जी, पायलट सोया। ये बात है, आप सिर्फ बता रहे थे कि सीट बेड किस तरह बनती है। जी, और मुझे क्या जरूरत है सोने की। और देखें, ये सारे इस तरह तंजिया अच्छा कह रहे हैं, ये जैसे ये रोजाना जहाज पे ही इधर आते हैं बैठ। इनमें से कोई मेरा ख्याल है शक्ल से मालूम होता है कि कभी जहाज के करीब से भी नहीं गुजरा। ऐसे इधर उधर की बातें मत करें हुजूर, आप सोए हुए थे। आज आपको बताना पड़ेगा कि आप जहाज में क्यों सोए। 1 मिनट, आपका जहाज से क्या ताल्लुक है? वो मेरे चाचे का पुत्र है। और मेरे दोस्त, जहाज की बात हो रही है। ये वही लड़का नहीं है जो लालू खेत में इस साल गधा गाड़ी की रेस में फर्स्ट आया है? बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट ट्रेवलर है, अभी 2-3 दिन पहले भी फिलाडेल्फिया से आए हैं। अच्छा जुनैद भाई, ये फिलाडेल्फिया तो इनके मुंह से निकलने से कासिर। आप इनसे कहें कि ये सिर्फ फ्रीक्वेंट ट्रैवलर का मतलब बतला दें, मैं आज ही पायलट की नौकरी छोड़ के रमजान में समोसे लगा लूं। तो फिलाडेल्फिया जाना क्यों? घर दे तेरे मगरों लभदे रहंदे आ।
और तू चुप करो बड़े बेर गिटक समेत खान वाले यानी मौसूफ उसे जहाज की सवारी पेंट कर रहे हैं और वो जुगत कर रहे हैं वड्डे बेर गिटक समेत खान आलिया। जुगत तो पता चल रही है कि लसूड़ी चकदा रहन वाला। अगर पायलट नूं लसूड़ी चक दा पता है तो सवारी नूं वड्डे बेरां दा नहीं पता हो सकदा। ਉਹ ਛੱਡ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਫਿਡਲਪੀਆ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਰੋਈ ਨਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਾ ਉਧਰ ਡਾਕੂ ਪੈ ਨਹੀਂ ਉਧਰੋਂ ਜਾ ਕਰ इनको जोड़े। ये बताएं कि एक और इल्जाम जो गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान तवातर के साथ सामने आया है वो ये है कि हमारे पायलट जो हैं वो किसी भी वीआईपी या वीवीआईपी को या माजरत के साथ किसी खूबसूरत खातून को फौरन कॉकपिट में बुला लेते हैं और उसके साथ गप्पे मारते रहते हैं, जिससे सैकड़ों मुसाफिरों की जो सिक्योरिटी है वो खतरे में पड़ जाती है। बोहतान इल्जाम ये कब हुआ भाई साहब? भुगतान क्यों है? पिछले दिनों आपने एक चीनी खातून को कॉकपिट में बिठाया हुआ था। एक्सक्यूज मी, वो मैं ही था उस जहाज का पायलट। उस खातून को सिर्फ इसलिए बुलाया था मैंने कॉकपिट में, वो जहाज में उड़ा रहा था जो अभी हमने चाइना से खरीदे। उसमें चाइनीज लिखी हुई थी, जो मुख्तलिफ डायरेक्शंस उसके अंदर लिखी हुई थी वो चाइनीज जुबान में थी। मुझे समझ नहीं थी आ रही। मैंने एयर होस्टेस से कहा था कि किसी चाइनीज को बुलाओ। वो खातून बैठी हुई थी, उसे बुला लिया, जरा हमें बता दो ये क्या लिखा हुआ है। अच्छा आपको चाइनीज जबान समझ नहीं आ रही थी इसलिए लड़की को बुलाया था? जी हाँ। तो सुना फिर बाद में लड़की को समझ नहीं आ रही थी? एक मिनट है, वहां पे जहाज में उस खातून के साथ 3-4 चाइनीज मर्द भी तो बैठे थे, उनमें से किसी मर्द को क्यों नहीं बुला लिया आपने? देखिए जुनैद साहब, खातून को इसलिए बुलाया कि कोई भी जुबान जो होती है और जिस कौम की मादरी जुबान होती है उस कौम की मादर को यानी माँ को ही ज्यादा समझ आती है, इसलिए मैंने उस खातून को बुलाया। बहुत अच्छे। एक और बहुत सीरियस इल्जाम आप लोगों पे ये है कि आप छोटी मोटी अशिया सही लेकिन आप स्मगलिंग के धंधे में भी मुलव्वस हैं। मोबाइल, ड्रग्स, ये भी आपसे बरामद? नॉट एट ऑल, कभी ऐसा नहीं किया। हाँ, अलबत्ता ये है कि जो मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त अहबाब जानते हैं कि मैं बाहर जाता रहता हूँ, तो वो जाहिर है एक उम्मीद बनाते हैं। आप लोग भी जब बाहर जाते हैं तो आप भी अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को गिफ्ट देते हैं। तो वही चीज लेके जाते हैं कानून जिसकी इजाजत देता है। तो मैं तो मोबाइल ही सिर्फ लेके आता हूँ। पिछले दिनों भी 150 मोबाइल मेरा पकड़ा गया, मैंने उनको तो आपके यहाँ 150 रिश्तेदार हैं? जुनैद साहब, तुसी मेरी फुफ्फो जनते नूं नहीं जानते। क्या? 85 पोतरे जे ओदे हाले मैं विच 2 तरे नहीं गिने। अगर वो पालवा ते 150 मोबाइल थोड़ जांदा जे। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਗਿਫਟ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਫੇਰੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? आशान मोहब्बत में प्रॉफिट कैसा? मोहब्बत? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਲਟ ਹੋ, ਹਮਾयूं सईद नहीं। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार मैं माफी चाहता हूँ पा जुनैद, या नहीं कोई ना कोई रोना लेके बैठ जाता हूँ, माफ कर देना मुझे। असल में टेंशन और बंदा जाके कहाँ बताए, दोस्तों को बतानी होती है, खास तौर पे जो पढ़े लिखे दोस्त होते हैं। जहाँ से टेंशन मिलती है कभी घर वापस जाके वहां पे भी बता दिया करो। वहां से टेंशन नहीं मिलती अल्लाह के फजल से, वहां से सवेरे सवेरे पराठे वाला नाश्ता मिलता है तुम्हारे बच्चों को। यार तुम क्यों अंदरूनी बातें भी खोल के बता रहे? कहने क्या लगे थे? कहने ये लगा था कि अब कुछ दिन से एक सिलसिला जारी हुआ है, एक मैसेज भेज रहे हैं तड़ातड़ लोग और साथ एक फोन नंबर लिखा हुआ आ रहा है कि ये फोन अगर आपको आए इस नंबर से तो ना उठाएं वरना धमाका हो जाएगा। और ऐसे बेवकूफ लोग हैं कि साथ उसके चंद तस्वीरें भी भेज रहे हैं कि इस बंदे ने सुना है, देखे इसका मुंह सारा जल गया है, इसने सुना है इसके दांत जल गए हैं, इसने ये देखो सुना है इसका दिल जल गया। और मुझे 2-3 बंदों को मैंने वापस कहा भी है कि भाई जी ये गलत है, ये बकवास है, ऐसे नहीं होता। फोन से धमाका हो ही नहीं सकता किसी सूरत में। फोन से धमाका सिर्फ एक सूरत में हो सकता है कि अगर आपका मोबाइल आपकी बीवी के हाथ लग जाए तो धमाका हो सकता है। देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि चल के उधर बात करते हैं, महल्ले में नहीं करते।
ये बड़ा एक्सपर्ट है। अमान से ये तो फोन छिपाने का ऐसा कारीगर हो गया हुआ है कि मैं हैरान होता हूँ, ऐसी ऐसी ये बात बताता है। यार मुझे भी कुछ बताओ, ये क्या मैसेज आ रहा है? और गौरी एक मैसेज चल रहा है, पता नहीं 777 और कितना 999 कोई फोन नंबर है। अच्छा। इससे फोन आए तो ना उठाएं, और खास तौर पे ये रात को आता है फोन। अब वो साथ ये लिखा हुआ आता है कि आपके पास जितने भी राब्ता नंबर हैं सबको खुदा के वास्ते ये Send करें करें। मैसेज, ताकि आप अपने दोस्त अहबाब, मिलने वाले रिश्तेदार, बहन भराओं को महफूज कर सकें। और यार खुदा के वास्ते जाने दो, अब तो इंसान कहाँ का कहाँ पहुंच गया, आप उधर ही लगे हुए हैं। कोई सुनता ही नहीं, आते जाते हैं वो मैसेज, नहीं बाई आ रहे लोग। और बड़े बड़े मोतबर बंदे भी वो मैसेज कर रहे हैं, बकायदा बड़े अपना पर्सनैलिटी वाले लोग। ये व्हाट्सएप पे मुझे यही मैसेज आया, साथ चूंकि व्हाट्सएप पे फोटो भी होती है बंदे की, मैंने वो देखा तस्वीर में, बड़ा पर्सनैलिटी वाला बंदा, पूरा बब्बर शेर लग रहा है, ऐसे बाल शाल बढ़ाए हुए, दाढ़ी शाड़ी रखी हुई। मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा भाईजान शक्ल से आप लगता है कि तालिबान की तंजीम को हैंडल करते हैं, मुंह आपका असली बम चलाने वाला है, और खौफजदा आप हुए हैं मोबाइल के पाटने से, क्या बन गई हैं आप? और मैंने कहा हजूर आप चंगे भले अक्लमंद बंदे लगते हैं, आप क्यों ये मैसेज कर रहे हैं? कहते हैं जी मुझे भी किसी ने किया, मैंने आपसे प्यार में कर दिया है, अब आप गुस्सा तो ना करें। और मैंने कहा यार ये कौन सा प्यार है, आपने मेरा ब्लड प्रेशर ही बढ़ा दिया हुआ है कल से, पता नहीं क्या हो गया हुआ लोगों को। आई एम वेरी फेड अप। I'm also FedEx. FedEx. No, you are Iodex. अंग्रेजी बात गई है, खबर सुनाओ क्या है? जी सुने, पनामा लीक्स के लिए तश्कील दी गई JIT का कतरी शहजादे को तलब करने का फैसला। मैं सदके जाऊं, वाह 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 वाह, बड़ी बात है। इन्होंने कतरी शहजादे को खत लिखना और उसने दौड़ते आ जाना। यहाँ सही गल है, सही गल है, ऐसे ही रिजर्वेशन भी करवा ली हुई है। हाँ जी लाइमन। और फिर वो तो बेचारा पहले ही अड़ीक रहा था ना कि याहिरा उधर से मैसेज आया तो मुझे नंगी पैरी दौड़ना पड़ेगा। मैं सदके जाए, इन्होंने खाते भी बेचारों ने पता किस तरह लिखना है। किस तरह? मोहतरमी जनाब कतरी शहजादा साहब, यहाँ आमों का मौसम शुरू हो चुका है और इस दफा अनवर टोर मिठा टीट कचूर आ रहा और तलोर जो है वो भी उड़ने के लिए तैयार खड़े। आपको दावत दी जाती है कि आके आप अनवर टोर का और तलोरों का मजा ले सकते हैं। हाँ उसमें आप 2-3 बातें अगर अपने खत के हवाले से भी कर देंगे तो ऐन नवायश होगी आपका ताबेदार JIT। ये खत उसने देखना, उसने छाले मारते आना है। ओहो अनवर टोर भाग गया, पंजो पंजो पंजो। हद हो गई यार। मन से मुझे वो वाकया याद आ गया, गांव में एक बंदा आ गया ना, को मुसाफिर का था, गल सुनो। फटाफट सारे गांव वाले एक एक देसी मुर्गा पका के मेरे लिए ले आओ, वरना मैं तुमसे वही सलूक करूंगा जो मैंने पिछले गांव वालों के साथ किया है। लोग बेचारे डर गए, घोड़े पे चढ़ा हुआ जवान आदमी है, सारे भजे अपना अपना कुकड़ को के ले आए, सालन पका के लाओ जनाब, खाना शुरू हो गया। उन्होंने कहा हजूर वैसे आप बताएं तो सही, पिछले गांव वालों के साथ आपने किया क्या था? आखिरी बोटी मुंह में डालते हुए कहता पिछले गांव वालों ने पका के नहीं ना मुर्गा मेरे लिए दिया, फिर मैं वो गांव छोड़ के इधर आ गया हूं। तो ये कतरी शहजादे ने भी अगर ना ये JIT की सुनी तो फिर देखना तुम JIT ने खुद उधर पहुंच जाना। गरीब दा तो तरला ही हुंदा है ना जी। अच्छा जी जरा सुने, वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ कहते हैं धरना ग्रुप बाज रहता तो बिजली के मुतअद्दिद मंसूबे मुकम्मल हो चुके होते। धरना ग्रुप बाज रहता? हाँ जी। अच्छा मैं समझा कह रहे धरना ग्रुप पास रहता तो मंसूबे मुकम्मल हो जाते। यार वो कह रहे हैं कि धरने वाले अगर बाज रहते तो बिजली के मंसूबे पूरे हो जाने थे। वाकई अगर धरने वाले बाज रहते ना, बाज बने रहते तो सारे मंसूबे मुकम्मल हो जाने थे। हाय हाय हाय। वैसे लाइमन मियां साहब आपको ये बयानिया ख्वाजा आसम ने याद कराया या आबद शेर अली ने पढ़ाया? और तरने वालों की वजह से कौन सा मंसूबा रह गया? कौन सा आपने डी चौक के अंदर को डैम बनाना था या कौन सा डैम बन चुका था और उसके सलंसर में जाकर तरने वाले टाकियां तो नए हैं? बादशाह बंदे आप, बात वो करें जो करने वाली है, समझ आने वाली है। तरने वाले किधरे होर, तो बिजली दे मंसूबे किधरे होर, लंदीपुर
कादरपुर च केड़ा तरना हुंदा है जनाब या कादरपुर च जाके इमरान खान बैठा रहे वैसे बताएं कि भाई जी शॉर्टफॉल ये आधा है हौली हौली पूरा हो जाएगा इस तरह के मजलूम बयान तो ना दे अच्छा जी अजीज साहब, शौक का कोई मोल नहीं होता। सुने जरा, लंदन में एक दुल्हन ने अपनी शादी में फोटो शूट के दौरान कुछ अजीब करने के शौक में अपने गाउन को आग लगा ली। शाबाश अल्लाह जी, मेरा ख्याल है इसके पूरे गांव में किसी लड़के ने इसे मुंह नहीं लगाया, जान जाइए किसी और पिंड से। इसको गुस्सा था, इसने पूरे गांव को आग लगा दी। गाउन नहीं, गाउन को आग लगा दी, अपने लिबास को आग लगा दी। अच्छा, गाउन पहनने वाला हाँ जी। उसको आग लगा हाँ दी। जी। ले जी, ये इसने को अजीब करने के लिए नहीं गाउन को आग तो लगाई, फिर? इसने अपनी सास डराने के लिए अपने गाउन को आग लगाई ताकि सास के येन में बैठ जाए कि कुड़ी पागल है, इन्हें कुछ कहना नहीं। ये अजीबो गरीब तस्वीरें खिंचवाने के चक्कर में कई लोग जान से हाथों बैठे भाई। अच्छा जी, फिर ऐसे लोगों के लिए दुआई की जा सकती है। देखो ना यार, इस जोड़े का क्या बनेगा, कैसे जिंदगी गुजरेगी। जिस कुड़ी ने ब्याह वाले दिन अपने कपड़ों को आग लगा ली है, उन्हें खसम का की हाल कर यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, पीपल्स पार्टी एक हकीकत है जो आइंदा इलेक्शन में मुल्क भर में कामयाबी हासिल मैं करेगी। सदके जाऊं अपने मुर्शद के। हाँ, मेरे मुर्शद है बब्बर शेर। वाह वाह वाह, क्या कहा मेरे मुर्शद ने, मैं तो खुशी से मुर्शद पागल कह रहे हो हैं गया। पीपी एक हकीकत है, आहा। जैसे नहीं था कीवी एक परिंदा है, बीवी एक दरिंदा। यार क्या कर रहे हैं यार, मुर्शद ने क्या कहा, इस तरह के खुदा के वास्ते सड़के सुहा होने वाले बयानात ना दागो। नहीं, क्या कहा क्या है यार मुर्शद? वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की जीत आइंदा इलेक्शन में वट पे पड़ी। मुर्शद, आपके बयान होते ही ऐसे हैं कि बंदा खीर पे हंस पड़ता है। यार मुर्शद ने जनरल इलेक्शंस की हो सकता है ना बात की हो, पीपल्स पार्टी के पार्टी इलेक्शन की बात की हो। ये भी तुम चेया ले रहे हो सकता है पीपल्स पार्टी अपने पार्टी इलेक्शन में भी हार जाए। टफ टाइम तो देगी ना। अल्लाह करे मुकाबला सख्त रहे। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल।